Okay, guys, this is gonna be a doubt session. So, without wasting any time, let's get into it quickly. अगर yes, okay. Can this be considered a valid position? ES21 October Relenting engaged daily open low looks good. Yes, high of the day would be a concern to me. And I would see how the correlated pairs would tell. Yes, your thinking is right. Open, low displacement away entry could be framed in here as well. That is what I assume. You took an entry in here and then got stopped out. I would need to look at it. Yes, expansion met with expansion, 100%. Expansion till expansion here. You can look to frame entries in here, But I would need to see the lower time frame price action for it as well. This comes, sweeps a swing, displaces through this, and you get stopped out. Just off of the signatures and a loan off of yes, this looks good. But I need to see the other pairs at the same day, same time. This is 21st October. Okay, it is Tuesday. Okay, 21st October is this and this and this. Okay, I would open just one chart and I would keep switching. मैं मार चलाऊंगा ये क्या दब रहा है बार बार दिस डे यार एक सेकंड देना मेरे तो मेरी सकल में MYM now we had a protected swing off of the previous week's framework Friday manipulation Monday distributing away from it, so we can frame another day of continuation till the objectives open. So framing NQ longs and ES longs, and the only level obstacle between that is this. So in a bullish order flow, I would expect highs to be displaced through. Same for ES, reaching into this. Same for YM, reaching into this framework. Same Friday from previous week formed a established reversal. Monday countering through it, and one more day of expansion could be framed to the objective. But one thing that price needs to fail to manipulate this, displace through this. Daily charts framework is 90 or 100% same for all three indices. Let's get into the day. This the only obstacle left, so I will be concerned about here only mainly. But if you see and yes, and this brother. Now next day, this is the next day.
Okay, objective here. Only obstacle is here. Let's see how the day forms here in all assets. How I would want a bullish day to form: open too low and then form a low and start to displace. Nice. सेम फ्रेमवर्क फॉर ईएस। एक तो ये जो हो रहा है ना मेरे साथ ऑफ है, मैं मार चला दूंगा। इंडिकेटर ऑफ करते हैं ना। ओके नाइस। So only thing to be concerned about is this referencing and then here. But if you go, एक तो ये ऐसे क्यों हो रहा है जो this is 11 a.m. This is okay. You can consider this as empty. Yes. Price is displacing away. तो ये ऊपर क्यों जा रहा है बार बार? मार चला दूंगा इसको। Expansion met with expansion. Daily open low then high. Yes, 100%. So now still if you want to frame prior to high of the day getting hit, something here, or for the last proper confirmed position, you wanna see price breaking through high of the day towards the range. I mean, if you want to frame it here, still valid. Let's see. This is what 7 a.m., 8 a.m. not aligns properly, and you took entry after 9 a.m. after this candle. Okay, just मैंने गंदी गोली मार देनी है इनको, ये जो बार बार कर रहे हैं मेरे साथ। NQ looks the least willing asset, not immediately rejecting off of here. See how this price is lower with clear closures and how it is struggling to go higher. So it makes me think it revisits the current low of the day. But if you see and not even concerned about high of the day, as I would want it to reach the range high directly if it is going for high of the day. So yes, one thing which I have taught UDB and Hitesh Bhai about retracement days, even with proper bullish framework, there could still be retracement days, and how to identify NQ was aligning for that thing. So one asset which should not be on your list is NQ, but you still took it on ES. So how we can avoid it, or if it was 100% value loss? Let's see. But if you take like NQ, which is a correlated pair of ES, tells me ये मैंने मार चला देना अभी अगर नीचे गए। चलो थोड़ा ही गया। NQ tells me that it may wants to reach for low of the day again, and it is the weakest asset of all. And this asset here is the strongest of all, with the last obstacle being this high of the day, then all the way to range high. YM and ES should be your pick. See how YM open low clear displacement away. ES still kinda same framework, but you can see the strength in YM, but ES still feels good. Displaces through here. Yes. See NQ at the same time, but least willing asset. Compare this move higher with YM. You would see the willingness. YM the most strong, ES the second, and the least asset, the last asset you wanna frame if long. More of a bearish framework than bullish. High is getting rejected. High is almost getting rejected. But you took it around 9 a.m. most probably off of manipulation of this low. Nice. Let's see. But if I can already see that YM is the strength leader,
then only thing which can stop it YM is high of the day. If I can frame it post after it hits the high of the day, then why not? Then my path is clear to the range high. But can we consider your loss as valid? Let's see. This was your position, right? MES MYM UDY took this if I am not wrong, and he took a break even, and I personally wanted to wait for YM to reach high of the day. That's why I didn't even take this despite knowing that YM is the strongest. And this just off of ES looks good. Now NQ wanting to reach for low of the day, so maybe that is the thing, or you can just take it as a kind of valid loss as you would take it post 930, right? 930 does close over here. So if we just talk about ES, then yes brother, you can call it as a kind of valid loss. But if we have, how we can avoid it, the thing is that if you are just framing NQES, then one thing, like in hindsight I can say NQ going for low of the day, but I could see NQ going for low of the day. That's why waiting for ES could have been considered. But still, if we just have a look at NQES, ES still looks valid. But when we do have a chance of framing the better asset, then why not? I mean, the objective is still open. This closure happens at the same time as the closure happens on ES. Why not YM? And the same thing you could have done, like even if your bias is wrong and price just reaches for range high, reaches for this high of the day and reverses, you can simply put a break even after around 1.5 hour, right? Because even if it does not displace through this to range high, you still lose nothing faster than break even, or it, and if it ends up going through it, you have a better entry and then again second entry, right? Break even here could have been considered. Yes, you would have stopped, would have been stopped at break even, but this entry post price hitting high of the day, not reversing there, continuing through it, best. I mean, yes, you would say why not, this looks good, I would say still valid, but why not? If we have the chance to frame the better asset, why do even settle for mediocre asset? So more of a asset selection thing than of a mistake from your side. Just like view, if you would have chose the better asset, the right asset, you wouldn't have been stopped at first place. You did everything you could, but just on the wrong person or wrong asset. You framed it the right way, you waited for the right spot for a protected swing, you framed better asset than NQ, and you use the right logic, expansion met with expansion. But just compare ES and YM at the same time as well, which looks like the strength we did. I mean, let me क्या बोलते हैं, replay it. M5 से तो नहीं दिख रहा, बट Orly से you can. Orly और M15 मेरे को कहाँ से क्लियर दिख रहा था? एक तो ये जो ऊपर नीचे होता है ना, चोर मार भी चलेगी. Just see just YM being clear open high, and this I would 100% expect this to be a retracement, as objective is still open, retracement objective being this.
if we talk about ES, मैं मार चला दूंगा. If same thing here, but more of a asset selection thing. You did frame it off of here, yes. Manipulation of this string, but the thing was asset selection. Get it, brother? But if you I mean, you can still consider this as a 90% valid loss. Get my point? I mean, let us check different time frame at the same time. But if you still and you kind of rejecting off of here, but this is the place where I would want NQ to reject. If NQ would have tagged this, then that ES long much better, but this is still assembly with ES. So if you still wanted to take something, this on ES could have been a better preference. I mean, this still would have stopped you out, but this is still better than that M5. This, I mean, yes, it would have failed at the same time, yes, but if you were framing is, this would have been the better entry. निशांत भाई, जस भाई आप बताओ. निशांत भाई ये ठीक था कि like you can stress about it at the same time and not stress about it at the same time. Like just think, what if you would have picked the better asset? You wouldn't even need, like, I don't remember what NQ was doing at this time because I never put my focus over an extent on NQ. I put my focus on the right asset. That's why I do remember about YM. Right? To be honest, I do not remember what NQ did after this or not. So what if you would have just selected the right asset? You wouldn't just doing the same steps, but the result ends up in your favor. So it is not that the steps you are doing wrong, it is the asset you selected was wrong. Steps, you did everything perfectly from your side. If you tell me to frame ES and not YM, I would frame it the same way as you did. Yes. But what if you would have chose a better asset? Doing the same thing would have made you, or would have resulted in your favor, right? अब इस पे क्या क्या मार चला था, हटाना पड़ेंगे. जस भाई जी थोड़ा की डाउट है. हाँ जी भाई, फिर तो मेरे सारे एसेट सिलेक्शन ही होगा शायद. कोई बात नहीं, पूछो तो सही. मेंबर्स वो चार्ट खोलो, उसमें 17 अक्टूबर से मैंने लिखी की है मेंबर चार्ट. एक सेकंड देता है, मैं ये मार्क कर देता ना, फिर हटाना भूल जाता. भाई जल्दी करना है, आपने सोना भी है जल्दी, ठीक है? हाँ जी आधे सर. घंटे में जय श्री राम कर देनी है. यस सर. टाइमर लगा लो भाई आपने तो. जस भाई बोला है बाद में भी नहीं आपने सुना, पर मुझे ये तो नहीं होगा कि कोई नहीं बात मेरे कारण. नहीं, आप बेइज्जती मार रहे हो मेरी. मैं उसे क्या लगता है
मेरा ट्रेलिंग हिट होगा या ऑब्जेक्टिव हिट होगा? मैं मतलब मेरे को पोजीशन क्लोज करनी पड़ेगी 4 PM तक। भाई नहीं तो वो अपने आप कर देंगे, टेंशन मत लो। कर देंगे, पर ये चीज 2-3 बार हो जाए फिर वो अकाउंट भी बैन कर देते हैं। कि अगर जी। 2-3 बार उन्होंने क्लोज करी ना, 4-5 4-6 या 4-10 तक, फिर वो अकाउंट बैन कर देते हैं। फिर वो बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल बनो, अकाउंट नहीं एक संभाल सकते तो क्या करोगे, हम नहीं देंगे आपको। अच्छा आप बताओ तो सही, आप आपने मेंबर चार्ट्स? हैं? हाँ ये वाला? हाँ जी, हाँ जी भाई। कहाँ से शुरू करूँ? ऊपर ऊपर से 17 लिखा होगा ऊपर। ये मेरे चार्ट ही है, नहीं नहीं इतनी ऊपर नहीं भाई, मतलब वही हफ्ते का 17। अक्टूबर ही? हाँ 18 और ये आ गया जल्द। 17, हाँ जी सर। ये ये वाला? इधर से करते हैं शुरू। भाई यही 1 मिनट में देखने में दो कि यही था ना। देखो देखो, कोई बात नहीं। 15 मिनट। सॉरी भाई, 16 अक्टूबर है, मतलब कि इसके छह पिछला अक्टूबर दिन? होगा ऊपर। 6 अक्टूबर नहीं है, यही है। सीधे जुलाई है। यही है 6 अक्टूबर, आपने डाला 16 17 को है। हाँ जी। फ्रेमिंग IRL टू ARL विद EQ, मतलब नेक्स्ट दिन फ्रेम करना चाह रहे हो आप? हाँ जी ये बायस है या आप जर्नल कर रहे हो? भाई, बैक टेस्ट कर रहा हूँ, मतलब बायस भी है ये मेरा, कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे, मैंने देखा नहीं है आगे क्या होगा। अच्छा, मैंने देखा बस नहीं है। रैंडम चार्ट पर से। अच्छा, हाँ ओके ओके। पर अगर मेरे को पूछो, मैं स्टिल दोनों साइड फ्रेम कर सकता हूँ। कि आप सोच रहे हो ये रिट्रेसमेंट है, 100% रिट्रेसमेंट यहाँ एंड होनी चाहिए, फिर रिट्रेसमेंट टू एक्सपेंशन। बट वट इफ ये यहाँ से रिवर्सल हो, तो नेक्स्ट दिन इसकी कंट्रीब्यूशन नीचे नहीं होनी चाहिए? तो मेरे हाँ जी, माइंड में दोनों केस होंगे। हाँ जी, अब ये उसी दिन का है? हाँ जी, हाँ जी भाई। हाँ वही है। ये इधर, नहीं नहीं, 200 पे ये, और 40 पे ये, 40 पे ये। बस भाई कंफ्यूज हो गया मैं यार। अच्छा, मुझे भी ये यही लगता है फ्रेमवर्क हो गया, ठीक है, ओके ओके। पर स्टिल थोड़ा कंफ्यूज जैसे भाई। हाँ जी, मुझे भी लग रहा है भाई, तब लिख लिया होगा मैंने फ्लो में। अच्छा, अगला दिन यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है पर यहाँ पे हो गया है, अब समझाऊं मैं। ये ऑब्जेक्टिव जो 200 के अराउंड है, ये यहाँ पे मार्क्ड है, पर यहाँ पे नेक्स्ट दिन प्रिंट नहीं हुआ है ना, हाँ औरली जी, में हाँ जी, वो प्रिंट है। हाँ जी, तो यहाँ तक बुलिश। नेक्स्ट डे खुलते ही इधर से अवे जा रहा है तो अच्छी बात है, इंटरनल से अवे जा रहा है, इसको रिस्पेक्ट दे रहा है। और एक प्रोटेक्टेड स्विंग आपके फेवर में। Established law made in London and price reached to objective before 9:30. If I am still bullish then, बट ऑब्जेक्टिव भी मीट हो गया। अब कहाँ पे हवा में टारगेट करोगे? एवरेज डेली रेंज के सिवा कुछ नहीं है आपके पास अब। और एवरेज डेली रेंज अगर मैं देखूँ 25,000 अराउंड दिन शुरू हुआ है और 240 तक गया, और 250 तो एवरेज डेली रेंज है, तो एवरेज डेली रेंज भी मीट हो गई है, ऑब्जेक्टिव भी मीट हो गया। आई वुड रेदर शॉर्ट देन लॉन्ग, है ना? ऑल टाइम हाइस पे कुछ बचा नहीं है। ये यहाँ पे दिन शुरू हुआ है और ये अराउंड 25,000 है, और गया हाई कहाँ तक है? 25,240 कुछ। 250 की एवरेज डेली रेंज है, पूरी फुल मीट कर दी। आई वुड इंस्टेड ट्राई टू फ्रेम बैक देन लॉन्ग, और वहाँ से रिजेक्ट भी कर रहे हैं। इफ आई एम स्टिल बुलिश देन दिस शुड बी द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। बट मैं बुलिश से ज़्यादा बेरिश प्रेफर करूँगा, यहाँ से उठाऊंगा यहाँ तक EQ, ये यही इसको टारगेट करूंगा। पर वो अगर मेरे को ज़बरदस्ती करना है, पहली चीज़ तो मैं मोस्ट प्रोबेबली करूँ ही नहीं है कोई और ऐसे देखो जिसमें है। IRL टू ARL फॉर मंडे, यस हाँ 100%। पर ERL तक आप कह रहे हो आपको एंट्री नहीं मिली यहाँ तक, है ना?
इसमें एंट्री नहीं मिली। हाँ वो कोई बात नहीं, 9:30 से पहले पहुंच गया तो फिर क्या करना चाहिए भाई? पहुंच जाए कोई बात नहीं। क्या पता कभी कभी 9:30 से पहले पहुंच जाए तो 9:30 वहां से रिवर्स करना चाहती है। ओके। ये कैसी एंट्री है भाई, मेरे को ही समझाओ। अच्छा वही ये बायस वाली भाई चीज है कि मैं फ्रेम ही नहीं करना चाहता ना इसके बाद लॉन्ग, हाँ जी। क्योंकि एवरेज डेली रेंज खुद देखो, यहाँ से शुरू है 25,000 से 240 के थोड़े ऊपर, एवरेज 250 है। मैं उसके ज़्यादा वैसे भी चाहता नहीं, और मेरे पास एक लास्ट ऑब्जेक्टिव पड़ा था वो भी मीट हो गया, प्राइस वहाँ से रिजेक्ट कर रही है। तो मैं बस देखूंगा, यहाँ से रिवर्सल हो रहा है तो सेम डे मेरे को एंट्री मिलती तो ले लूंगा, नहीं मिलती तो बस दिन छोड़ दूंगा, मेरे लिए दिन खत्म। कि कुछ बचा ही नहीं कि ज़बरदस्ती फ्रेम नहीं करना है तो सच में करना है। मैं देखूंगा मोर ऑफ अ बेरिश फ्रेमवर्क जो कि यहाँ पे 9:30 इससे अवे जा रहा है, काइंड ऑफ ये 9:30 होगी। तो अगर इस पे कहीं नेक्स्ट कैंडल में एंट्री ढूंढ सकते तो यहाँ तक वो बेटर है रेदर देन यहाँ से लाओ। भाई एंट्री तो स्टिल सेम है, ऑर्डर ब्लॉक ही होगा, पर वो क्यों, वो हाई टाइम फ्रेम से है ना। हाई टाइम फ्रेम में मैंने पहले यहीं पे आप ही के चार्ट में दिखा दिया बिना अपना खोले। तो मैं ये भी नहीं लेता, बात वो है कि दिस लुक लाइक दिस वर्क, पर मैं क्योंकि लॉन्ग्स देखता ही नहीं, बात में मेरे लिए लॉन्ग्स का काम ही खत्म हो गया। ठीक है। और इस सेम दिन मेरे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैंने ईएस को शॉर्ट मारा था, क्योंकि मैं एनक्यू ऑलरेडी पहुंच चुका था और ईएस मेरे लिए बेटर एसेट था, ईएस शॉर्ट मारा था मैंने। रुको मैं बताता हूँ, 21 है ना ये। दस भाई, 21 तो नहीं है। 21 नहीं है भाई, 6 अक्टूबर हो गई ये साथ। नहीं, मंडे। मैं देख लेता हूँ। कोई बात नहीं। हाँ यही था। ये वाला दिन होगा 6 अक्टूबर, मंडे है ना। हाँ। इसके पिछला दिन, ओके। तो उसने ले लिया, इसने नहीं लिया। ईएस वीकर एसेट है, एक चीज जो मैं देख सकता हूँ। अगर मैं बेरिश हूँ तो मैं वैसे भी प्रेफर ही करूंगा वीकर एसेट को फ्रेम करना, है ना। सेम इसी टाइम आप यहाँ कहीं से इनकी लॉन्ग देख रहे हो, है ना। मेरे हाँ लिए जी। जितना काम है वो ऑलरेडी हो चुका है लॉन्ग्स के लिए। मैंने बोला मेरा लॉन्ग देखूंगा नहीं, इंस्टेड बेरिश, तो बेरिश के लिए मेरे पास एक एसेट बोल रहा है जो मैं अभी भी बेरिश जा सकता हूँ, ये है ना। तो इसके लिए बेरिश कहाँ तक देखूंगा, डेली ओपनिंग प्राइस यहाँ तो यहाँ तक, और गया था पूरी वहां तक, ये 18 ओपन, और वही 8 AM की काइंड ऑफ मैनिपुलेशन 9:30 अवे। तो मेरी एंट्री कुछ थी, कुछ ये थी 9:30 अराउंड, मैं शॉर्ट के लिए देख रहा था इंस्टेड, ये वाला इसका क्लोजर पे थोड़ा बेटर आइडिया। यस सर। कि लो टाइम फ्रेम में तो ऑर्डर ब्लॉक ही होगा हमेशा, या कोई फेयर वैल्यू का ऑर्डर ब्लॉक, बट वो देखना क्यों है, वो हाई टाइम फ्रेम से होगा ना। ये 9:30 एक यहाँ चीज तो पे, पता लगती है भाई। जैसे 9:30 इससे डिस्प्ले सर्वे कर रही है तो मेरे फेवर में काम है कि अगर ये प्रोटेक्टेड रेंज हैव द डे और प्रीवियस डे से दूर जाना है तो 9:30 से पहले इनफ रेंज रिट्रेसमेंट हो चुकी है। ये क्या 9:30 से पहले रिट्रेसमेंट, 9:30 को क्या करना चाहिए अगर बेरिश हो, इससे डिस्प्ले सर्वे 9:30 तगड़ा करती है बस। फिर मैं वापस बैक टू ओपन हाई टू लो फ्रेम करूँ, थोड़ी सेंस बनी। हाँ जी। और बनी। एनक्यू स्ट्रॉन्ग था तो मैं शॉर्ट मारना चाहता, तो मैं स्ट्रॉन्ग की जगह वीक वाला शॉर्ट मारूंगा। दिख रहा है वीक कौन है और कौन स्ट्रॉन्ग है ना। यस सर।
अगर इस दिन मैं वायम भी देख लूं, ओ ये तो बड़ा ही वीक कुछ ज्यादा वीक हो गया भाई। मैं प्रीवियस डे लो तक फ्रेम करना चाहता था इसको, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। प्रीवियस डे लो है 6, ये होगा ना फिर। पर मेरे को कोई एंट्री नहीं मिली होगी। मैं थोड़ा बहुत, आप भी जानते हो मेरे को, मैं इसके नीचे या इसके नीचे देख रहा हूँ एंट्री, है ना। यस सर। ये यहाँ से रिवर्स नहीं करे, यहाँ से फाड़ता हुआ जाए और यहाँ से फिर मैं यहाँ तक फ्रेम करूंगा प्रीवियस डे लो, क्योंकि ये सबसे वीकेस्ट एसेट था। अगर ऑल लिख दे रहा हूँ, प्रीवियस डे expansion to then consolidation. What comes after consolidation? Another expansion in the previous direction. So यहाँ तक जाना डन है, पर यहाँ से कुछ भी कर सकता है ना अभी, है ना। कंसोलिडेशन का मोटिव क्या है? यहाँ तक पहुँचाना, तो यहाँ तक जाना ही है, ठीक है, डन है। अब यहाँ से ये क्या कर रहा है? मैं चाहूँगा अगर मैं बेरिश हूँ और ये सबसे वीकेस्ट ऐसे, तो ये डिस्प्ले शुरू करे। हालांकि मेरा बाय इस पे राइट था, पर एंट्री नहीं मिली, तो नो प्रॉब्लम, ई एस पे थी, मैंने वो ले ली। हालांकि दिस वॉज द वीकेस्ट, बट डजंट मीन आई वुड फोर्स। ओम भाई ने ले लिया था ये चोर ने, शायद बड़े चोर हैं ये। नहीं, मैं देखता हूँ आरटीवाई पे था इस दिन कुछ। पता नहीं अब ये रिवर्सल एंट्रीज भी कौन सी कहाँ पे ले लेते हैं, नो आइडिया इन्होंने क्या लिया था। पता नहीं, शायद यही के ले लिया था ओम भाई ने। चलो ये वाला क्लियर तो हो गया कि इनकी लॉन्ग्स आपकी बुक्स पे ही नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनकी के लॉन्ग का काम ही खत्म हो चुका है। अब चलते हैं वापस डेली चार्ट। नेक्स्ट डाउट होगा 7 अक्टूबर। Now I can expect two cases. First one, price either take previous high and show displacement. Other case price show display हैं? इस भाई दोनों ही सेम लिखा है आपने। भाई ऊपर से नीचे मार दे या ऊपर करके दे, तो वो आपने अपना मन में ही समझा दिया अपने आप को। लिखना किसने था? हमने कहा प्राइस टेक प्रीवियस हाई शो डिस्प्लेसमेंट, सेकंड लिखा प्राइस शो डिस्प्लेसमेंट ओवर प्रीवियस हाई। अच्छा, सेकंड लिख रहे हो इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट से बाहर, दूसरा बोल रहे हो प्रीवियस हाई लेके डिस्प्लेसमेंट अंदर, ये हाँ जी। ठीक ठीक। सो डिस्प्लेसमेंट बैक इनसाइड द रेंज, उस सेंस में लिख सकते हो कि वापस नीचे। नीचे फेयर वैल्यू से रिजेक्ट कर रहा है ना ये, मतलब हाँ, मुझे पता नहीं है कि ऊपर हाई ऑब्जेक्टिव नहीं पता मुझे कुछ। नो वरीज। So price intact, previous high and 930 low should be protected if it wants to make to break out, otherwise it will for weekend flip। हाँ कि previous जाए ले लिया, अगर यहाँ से इसको ट्रू ब्रेकआउट बनाना यहीं से जाए, अब यहाँ से नहीं जाता तो इट इज गोइंग लोअर। हाँ कि अगर यहाँ से देखो बुलिश फ्रेमवर्क है, लास्ट लास्ट दिस विल स्टे प्रोटेक्टेड इफ इट वांट टू गो हायर। हाँ 100% ठीक है जज भाई, मैं भी ऐसे ऐसे करते सीखा। राधे राधे दिशांत भाई। कि expansion into an objective new phase which is not an expansion, so let's see how it is। so यहाँ पे या यहाँ पे रिएक्शन, और अगर एवरेज डेली रेंज सपोर्ट करती है यहाँ कहीं तक एक्सपेंशन, तो मैं वेट कर लूँगा। सिंपल प्राइस इसको फाड़ के जाए, मतलब यहाँ से रिवर्स नहीं कर रही है तो बस मैं एक्सपेंशन जब शुरू होगी तब बैठ जाऊंगा। और इस लेवल से प्राइस डिस्प्ले शुरू कर रही है, मतलब इधर से वो कर नहीं कर रही ट्रू ब्रेकआउट, इंस्टेड इधर से रिजेक्ट कर रही है। तो दिस कुड बी कंसिडर्ड 1030 ओपन हाई डिस्प्लेसमेंट थ्रू।
भाई लॉजिक, नरेटिव वाला लॉजिक यहाँ पे लगा है कि अगर इसको बुलिश जाना है तो यहाँ से जाए, बेरिश जाना है तो वहां से जाए, वो चीज सही करी ना, तो ये वर्क भी करी। भाई इतनी देर फिर वेट करेगा बंदा 10:30 तक इसका लॉजिक बनाने, क्योंकि पहली बार इसने वो रिजेक्ट कर दिया जब प्रोटेक्टेड बना था, हाँ जी। तो फिर उस पर डिस्प्लेसमेंट नहीं शो की इसने 15 मिनट पर, पिछले से पिछली फोटो पर। वो यहाँ पे नहीं शो करी है ना, इसको रिजेक्ट हाँ इसने जी यहाँ हाँ पे। जी। पर फिर अगर ये होल्ड करना चाहिए ना यहाँ पे, अगर इसने बुलिश जाना है, होल्ड नहीं कर रहा है। यस सर। दिस चलो इज ये गुड, भी ठीक है। दिस इज गुड। 8 अक्टूबर, यहाँ पे मैं बुलिश था इन क्यू पे। नाउ फॉर क्योंकि भाई वेडनेसडे। हाई भी बन गया और लो भी बन गया हाँ, है। वीकली ओपन लो भी बन गया ना, हम्म। क्योंकि अगर इसने इसके ऊपर डिस्प्लेस करना है तो ये प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, और इसके प्रोटेक्टेड में लास्ट जहाँ पे कुछ बन सकता है प्रोटेक्टेड, वो ये यहीं पे बना मंडे का लो स्वीप करके, ट्यूसडे अगर बुलिश है ट्यूसडे रिवर्सल, वेडनेसडे कंटिन्यूएशन, मिनिमम ऑब्जेक्टिव ये। और अगर इसने बेरिश जाना है तो यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई स्वीप, नेक्स्ट डे यहाँ तक मैं चाहूँगा फिर। Now for Wednesday, I have neutralized high of the week is established and low of the week. If bearish then EQ. हाँ, दोनों केसेस में EQ आपका साथी है। यहाँ पे हिट करा नेक्स्ट डे, इसको मैं इतनी अटेंशन नहीं दूंगा, जस्ट देखूंगा ड्राइवर। अगर बेरिश जाना है तो मैक्सिमम इसको इतना नहीं कि इसको मार करूंगा हाई को कि यहीं से जाना चाहिए, अगर इसको बेरिश जाना है, यहीं से नहीं जाता फिर ये फाड़ के जा रहा है। अगर इसको बेरिश जाना है यहाँ, इसको प्रोटेक्टेड हाई बनाना है, और 9:30 से पहले अगर दिन का प्रोटेक्टेड हाई नहीं बना तो 9:30 मैनिपुलेशन करेगी, और 9:30 मैनिपुलेशन नहीं कर पा रही है इसके ऊपर, तो 9:30 फेलिंग टू मैनिपुलेट। बुलिश फ्रेमवर्क का लॉजिक मेरे पास ऑलरेडी है, तो हम बुलिश फ्रेमवर्क की तरह फ्रेम करेंगे इसको। नाइस वन, ये मैंने भी लिया था सेम जज भाई, डिटो सेम लिया था मैंने। ये इजी एंट्री थी भाई, ये मतलब तो लग रहा था कि यार ये वर्क कर जाएगी शायद। नहीं लिया था मैंने, पर ये बस मेरे को पास अब चैनल लेना, नहीं तो मैं दिखाता। कहीं तो पोस्ट करा होगा भाई मैंने। भाई मैंने समझ लिया आपने अच्छा, लिया है, इसीलिए लिया कई है, लोग आया, करते मैं नहीं मेरे है। को याद है उस दिन मैं स्ट्रीम पे आया था, आप लोगों को याद है, ये ली थी। और उसके बाद मैंने बोला था कि मैं यहाँ ट्रेल करने पे क्यों खुशी से ट्रेल नहीं कर सकता, आया याद। यूडी भाई और उन्होंने हाँ जी हाँ जी। यहीं पे ट्रेल करा था, या यही लो प्रोटेक्टेड मान के याद एंट्री याद ली थी। यूडी भाई और रितेश भाई का एसएल हिट हुआ, पर मैंने यहाँ पे ली थी, तो मैंने ट्रेल ही नहीं करा था, क्योंकि मैं चाहता था ये जो नेक्स्ट कैंडल है ये 1-2 मिनट के लिए और इसके ऊपर होल्ड करे और थोड़ा डिस्प्लेस करे, तो मैं ट्रेल करूंगा, नहीं करी तो मैंने ब्रेक में नहीं रखा, तो ब्रेक तक फिर नहीं बाद आया, में आपने उस पर ट्रेल रख दिया था है ना, इस पर इस रख पर। दिया था। हाँ, हाँ। देखने में ये वैलिड लगेगा, पर वो पर्सनल डिस्क्रिप्शन और एक्सपीरियंस था वो, तब तो लाइव स्ट्रीम पे था, मैंने कहा कि मैं यहाँ ट्रेल क्यों नहीं करूँ। उसके बाद हिट हुआ था फिर ट्यूजडे। हाँ, याद आ गया मेरे को। नाइस। ठीक है सर। बस ये तो होगी इसका ही, थोड़ा ठीक था दिन। नाइस एक्वायर न्यूट्रल बायस टू गो बुलिश देन। अच्छा, आप लिखे भी थे, नीकी मस्ट बी रिस्पेक्टेड। वही तो मेरा आईपैड पर वॉइस लगी है ना, फिर मैं बोल भी देता हूँ तो वो अपने आप लिख लेता है। अच्छा, ये हाँ बोल के मैं लिखा है बोलता हूँ आपने। ना तो मैंने टाइपिंग किया है ये। मस्त है जैसे भाई। If I want to go, then EQ must be, and on one or EQ respected should display to the bullish side. आप भी मस्त EQ यूज करना सीख गए, पर थोड़ी सी गलत है कि ऐसे तो मतलब डेली चार्ट में इस तरीके से EQ यूज करना ओम भाई को भी बड़ी मुश्किल सिखाया, कि जहाँ पे कोई स्विंग ही नहीं है, कि देखने में तो स्विंग यही बना है एक, और इसको भी कंसिडर कर सकते हो, इसमें कहीं बना है, इसमें बंदा बेरी सोचेगा रेदर देन बुलिश। पर लोअर टाइम फ्रेम में आप मन में आपको इमेजिन तो करना आ ही गया ना यहाँ से अब,
लो टाइम फ्रेम में ये रिट्रेसमेंट हो सकती है और ये विक रिजेक्ट कर रही है यहाँ से वापस बुलिश, ये आ गया, ये भी बड़ी मुश्किल से आता है ना, पर स्टिल EQ फिर होनी चाहिए ये यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक रिजेक्ट करा है ना। वाई रुपी होगी भाई। मैं बोल ही नहीं रहा, अरे प्रेफर लॉन्ग से नहीं मैं शॉर्ट्स भी देख सकता हूँ, मैं लॉन्ग भी देख सकता हूँ। तो ये कौन सा रेलेवेंट लेवल है जैसे भाई, मेरे को ही समझाओ। नहीं नहीं, प्रीवियस डे हाई नहीं है ये। ये हुआ ना प्रीवियस डे, हाँ प्रीवियस डे हाई ये है, सॉरी। हाई ऑफ द डे बोल सकते हो, एक काइंड ऑफ रेलेवेंट। हाँ जी। नहीं, हाई ऑफ द डे तो प्रीवियस डे हो ही गया नहीं ऑलरेडी। ये होगा हाई ऑफ द डे, प्रीवियस डे ये है। यस, हाई ऑफ द डे मार्क करना चाहिए था। दिल्ली कुरुम यहाँ से अल्लाह, मेरे साथ वापस आ गए 10 बजे पूरे एकदम, मेरे साथ अन्याय कर दिया इन्होंने, 4 घंटे वेट करने का। कितने बजे भाई पूरे तो वापस बाद आए। में क्या बना भाई उसका पोजीशन का? लगभग लगभग हाँ, चोर लोग पूरे वापस आ गए। नहीं अभी मैं निकला नहीं हूँ ब्रेक तो वैसे निकल गया भाई, कितनी देर रुकना पड़ रहा है अब। 12:45 पे 3:45, 3 घंटे अब मार चलनी है तुम्हें, इतनी देर रुकाने का ये बल देते सब। 2 पॉइंट से छोड़ के आए जो तुम ये यहाँ पे आप। इतनी तो नहीं अभी रिवर्स करेगा भाई कि कर भी सकता है। ये तो भगवान ही जान सकता है। ये अगले 5-6 मिनट देखूंगा ना इसको बस, तब तक ब्रेक इवन ही हिट कर देगा, नहीं तो अभी जो ब्रेक दो इवन ज्यादा चांस लगते हैं मुझे अभी। अभी एक क्वांटिटी मैंने यहाँ की निकाल दी थी, मैंने कहा मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक आ रहा है पर ऐसे ठाली जाएगा 350 पे। तो ये प्रोटेक्टेड रहना चाहिए कि उसने जाना हुआ ऊपर। हाँ एक दो मतलब 5-10 मिनट 4 बजे तक देखूंगा, नहीं तो मैनुअल मैनुअल क्या तब तक, नहीं तो ब्रेक इवन ही काट देंगे मेरे को, चोर लोग एक नंबर के। अब और कल मेरे को लगता है एशिया सेशन में ही कर देंगे ये काम, पता है ऊपर जाने का, इनको दिक्कत है मेरे से आजकल, मेरे बीमार होने का फायदा उठा रहे हैं ना ये। 6 PM ओपन लो, डिस्प्लेसमेंट अवे 9:30 से पहले रिट्रेसमेंट हो गया, 9:30 इज सपोज टू एक्सपैंड, ऑब्जेक्टिव स्टिल ओपन है, नाइस। आए जैसे भाई आए, ये एंट्री कैसे लेते हैं आप जब ये तो यहाँ पे है ना, अच्छा वापिस आने टाइम, नहीं 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 ये इतना वापिस आ रहा है, फिर मैं इसको नहीं लूंगा ना, फिर मैं देखूंगा ये 9:30 आप 9:30 के बाद लेते हैं ना वो। लिमिट ऑर्डर ले रहे हो अगर यहाँ पे, तो इतना जाने के बाद इतना वापस आ रहा है, तो वो मैं पहली बात यहाँ पे देखूंगा नहीं, क्योंकि अगर इसको छोड़ के 2 पॉइंट से इतना वापस आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली किसी चीज को लेने आ रहा है वापस, तब मैं और रिस्क में नहीं डालूंगा, तब मैं वेट करूंगा 10 AM का। अगर यहाँ पे बिना यहाँ पहुंचे पहले यहाँ पे एंट्री मिली तो मैं होल्ड रखूंगा, थोड़ी वो मेरे मतलब मेरा सेंस समझी मैं क्यों समझाना चाह,
इतना जा रहा है ऐसे, फिर सारा वापस आ रहा है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए वापस आ रहा है ना, तो ये यहाँ पे क्यों रुकेगा, फिर एटलीस्ट यहाँ पे जाएगा फिर। तो मैं लिमिट, मैं चाहूंगा नहीं जब ये यहाँ पहुंच गया ऑल द वे यहाँ पे। तो भाई हमने एंट्री यहाँ पर ले ली वो लिमिट पर, जो 9:30 की अगली कैंडल के क्लोजर पर। यहाँ पे कैसे लोगे आप, स्टॉप लॉस यहाँ रख के एंट्री यहाँ नहीं टिपी नहीं है। नहीं नहीं, जब ऊपर जा रही है तब लिमिट एंट्री ले ली सीधी ऊपर जाते हुए लिमिट कैसे यहाँ पर। लोगे आप मार्केट। ठीक है सर। नहीं विनोद जाके पर मे भी, हाँ नहीं 1 मिनट पर भी नहीं होगा इसका क्लोजर इतना। नहीं नहीं ठीक है भाई, सही है। क्या पता इस दिन कोई और एसेट अच्छा गया हो। दिन कौन सा है? हाँ जी। 9 अक्टूबर। इसके अगला दो, इसके अगला, क्या अगला, का अगला है ना 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर होगा भाई, मैंने 9 लिख दिया शायद। है ना हाँ इसका कुछ नहीं कर सकते थे, ये ट्रम्प सिंह था। स्टिल हमें थोड़ी पता था, तो उसके पहले हम क्या कर सकते थे देखते हैं, ठीक है। यस। रुको जैसा है बोल रहे। मैं तो इधर ले करूँ नहीं आ प्यार 6 PM इधर है। सो डेली कैंडल की ओपन लो और यहीं पे बनना चाहिए, यहीं पे बन रहा है। प्रीवियस डे की इक्यू भी यहीं कहीं होगी। हाँ तो ठीक है रिस्पेक्ट। और मेरा ऑब्जेक्टिव ये पड़ा, अब मैं बाकी एसेट देखूंगा सेम टाइम पे। एन क्यू आई वुड से बेटर एसेट, हाँ क्योंकि दिस लुक्स मोर वीक देन स्ट्रॉन्ग डेली चार्ट से। ये मोर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मेरे को और ये मोर वीक दिख रहा है। ये इसका क्लोजर पिछले दिन, इसको तो छोड़ लो, पिछला दिन। सो शॉर्ट्स, if shorts then yes, if longs then NQ। YM no idea, YM only idea कि यहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, कि ये रेंज है यहाँ यस। से प्रीवियस डे, और इतना ऊपर आया तब मैं इसको ऑलमोस्ट प्रीवियस डे हाई तक फ्रेम कर रहा हूँ। और ये 1055 पे गया था ये मूव सारा, तो मोस्ट प्रोबेबली नो वे you could have been able to tell that this is gonna happen। YM पे भी अगर वो डेली रेलेवेंट लेवल है, इसका वेट कर रहा हूँ, तो इस पे मैं इधर तक तो बोल सकता हूँ ना कि बीइंग मैनिपुलेटेड 10 AM से पहले। तो 10 AM इतना फाड़ के गया है तब मैं सोचूंगा। और ES बुलिश, NQ बुलिश, और मतलब प्रेफर्ड एसेट NQ होता है। यस, अब NQ पे एंट्री मिलती या नहीं, बात हुआ है। ये तो मैंने इधर 9:30 अराउंड कुछ नहीं लिया था, मैं मोस्ट प्रोबेबली वेट कर रहा था ES पे हायर द डे का, और NQ पे मैं वेट ही नहीं कर रहा था शायद, या ES का ही वेट कर रहा था। एग्जैक्ट नहीं आइडिया मेरे को। और अगर YM की बात करो, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है ये अभी तक तो, मे बी हाँ। तो इस पे प्रीवियस डे हाई पर कोई फ्रेमवर्क मिला नहीं मिला। क्या इसके बाद मिलता
देखते हैं। इसको अगर साइड पे रखते हैं, ये क्यों लॉस क्यों है? आई मीन इतना फाड़ भी नहीं है, पर ईएस में मेरे पास बेरिश फ्रेमवर्क होता तो फिर ये बनता, ये नहीं इसके पिछला। तो मैं चाहता ये यहीं से जाए कि रेलेवेंट लेवल टैग्ड, इससे अवे इतना वापस ना आए। इतना वापस आता तो मैं इतना खुश नहीं होता ना बेरिश फ्रेमवर्क के लिए। फिर मैं इंस्टेड वेट करता, तो यहाँ से भी जानी चाहिए मेरे पास ऑब्जेक्टिव ये है मिनिमम, या फिर मेरा डेली चार्ट पे ये। पर अगर मैं एन क्यूब बुलिश सोच रहा हूँ, ठीक है। रिकी भाई का सेम डाउट था इस दिन। रिकी भाई याद है आपको? कुछ तो समझाया था मैंने आपको, हैं? कुछ मेरे को नहीं याद। हाँ, आपने एन क्यू पे एस लिया था इस दिन, है ना? 10:35 अराउंड इधर कहीं लिया था। एग्जैक्ट नहीं याद, पर मैंने कुछ तो समझाया था। और क्या बोला था आपको मैंने? मेरे को खुद नहीं याद। तो 5 मिनट, 3 मिनट। कोई भी ऐसा इतना तगड़ा नहीं है। दिस सिग्नेचर इफ एस एम टी यहाँ पे है, तो ओनली थिंग विच कुड बी कंसीडर्ड एस एम टी भी नहीं है। क्लोज ही कर देता हूँ, 4 बज गए पूरे। गालियाँ देंगे मफुआ से। हाँ, कोयली में ब्रेक इवन। नहीं नहीं, ब्रेक इवन से थोड़ी ऊपर। चलो प्रॉफिट हो गया। तो इस दिन 10:45 पे वो ट्रम्प की न्यूज़ थी चाइना के साथ। वो आउट ऑफ नोवेयर आई थी, एंड नो वे यू कुड हैव प्रिडिक्टेड दिस हल। इसके बाद हुआ था। सो यस, मेरे पास बेरिश फ्रेमवर्क होने के बावजूद देयर would have been no way I would have been able to capitalize upon it. बुलिश बना ही नहीं। ये ली थी शायद, रिकी भाई ने ये ली थी ऑब्जेक्टिव पढ़ा, पर इसका कुछ तो रीजन दिया था मैंने। विलिंगनेस नहीं थी इतनी तगड़ी शायद, पता नहीं, कुछ तो बोला है मैंने। पर मैंने सिर्फ विलिंगनेस नहीं प्रॉपर समझाया था। उसी दिन पूछा था ना रिकी भाई ने शायद, तभी। तो इतना अभी भाई खास। सर ये मुझे लगता है इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते थे इस पर तो। हाँ, तो these incidents not happen every day, so you do not need to worry much about them। कि once in a blue moon वाले हैं तो कोई बात नहीं। अब इस पे चलते हैं। डेली से आपका बिल्कुल परफेक्ट एसेट। थैंक यू। बस ये क्यों थोड़ी गलत मार्क कर दिया आपने। EQ भाई कैसे पूरी बॉडी से वो पूरी बॉडी करनी थी। नहीं नहीं, डिपेंड करता है आप बेरी सोच रहे हैं बुलिश। अगर मैं बुलिश सोच रहा हूँ तो इस कैंडल को फॉर्म होते हुए मन में देखो। अकेले देख के देख लीजिए ना। कि मन में सोचो ये कैंडल कैसी है। कि इट वुड हैव डन समथिंग दिस, इधर तक आके फिर दिस, है ना? इसमें बुलिश मूव हुआ ही कितना, ये यहाँ से यहाँ तक, है ना? तो वो क्या हुआ, ये इतना पार्ट। तो अगर मैं बुलिश हूँ तो जितना बुलिश मूव हुआ उसी की क्यों जाऊंगा ना मैं। तो इस विक की रिजेक्शन का क्यों। और अगर मैं बेरिश हूँ तो मेरे लिए बेरिश पार्ट ही कितने हैं। ये मतलब कुछ यहाँ से यहाँ जाके ये यहाँ तक रहा है बेरिश। जितना बेरिश है तो मैं बेरिश उतने का ही क्यों लूंगा यहाँ पे।
हाँ क्लियर हो गया एक और डाउट। सर, आप दिन में क्यों सो रहे हो? भाई कि अभी फिर काम में जाना है, बस रह गया थोड़ा टाइम। 13 अक्टूबर आई हैव नो बाय 13 अक्टूबर तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहता था, इतने लार्ज दिन के बाद सीधे ही अवॉइड करना चाहता था मैं। मतलब प्रेफरेबली एक दिन रुकना चाहता था कि व्हाट फॉलोज आफ्टर टू मच ऑफ एन एक्सपेंशन, वो आज ही M15 चार्ट पे जो मैं बोल रहा था, टू मच एक्सपेंशन फॉलोड बाय न्यू फेज, लार्ज रेंज टू स्मॉल रेंजेस, वो वाला सीन। प्राइस वांट टू गो ये बेरिश कहाँ से फ्रेम करने लगे सर आप? ऑन H4 दिस इज द बेस्ट relevant level. If price wants to go bearish then it should show displacement from इधर से नीचे. This is what you mean, okay. पर नीचे कहाँ तक? अच्छा, इसके नीचे ट्रू ब्रेकआउट सोच रहे हो आप अगर? देखो देखते हैं कि इधर से मतलब यहाँ से हाँ ठीक है, लंदन रिवर्सल और ये सारे फेलियर स्विंग है, अकेला ये ट्रस्ट कर सकते हो। तो अगर 930 है किसी को जाना यहीं से जाए, टू गुड है जस भाई यहाँ तक। पर इंस्टेड ये नीचे जाता है, नया लो बनाता है, क्योंकि अगर बेरिश है यहाँ से रिजेक्ट करा और लोस पे डिस्प्लेस होना चाहिए। बात वो है, बेरिश फ्रेमवर्क क्या होता है, लोस को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। इसने यहाँ को रिजेक्ट करा, गया लो तक, लो पे क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट है ना, लो को रिजेक्ट करके वापस आ रहा है। तो दिस इज नॉट समथिंग यू वुड वांट सी हैपन। अगर मैं बुलिश हूँ तो मैं लोस रिजेक्ट और हाईस डिस्प्लेस, बेरिश हूँ तो हाई रिजेक्ट लोस डिस्प्लेस। यहाँ पे किसी भी एक साइड का नहीं बोल रहा, लोस भी रिजेक्ट कर रहा है, हाईस भी रिजेक्ट कर रहा है। तो सिग्नेचर ऑफ नॉट अ गुड प्राइस एक्शन, वन साइडेड डायरेक्शन नहीं है उसके पास, हाईस भी रिजेक्ट कर रहा है, लोस भी रिजेक्ट कर रहा है। अगर यहाँ से बुलिश सोचूं 3 मिनट के हिसाब से काइंड ऑफ ठीक बोल सकते हैं, पर स्टिल वही आइडिया, टू मच एक्सपेंशन, व्हाट फॉलोज नेक्स्ट, अ न्यू फेज। इतना मच एक्सपेंशन आई वुड वांट टू सी न्यू फेज। बट आइडिया सही लगा आपने कि यहाँ पे देखूं क्या, फिर यहाँ तक। पर ऑरली और 4 और के बिना डेली तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, पर ऑरली 4 और स्टिल प्रेफर्ड रखता, मैं देखना चाहता है यहाँ पे। और पिछला दिन इतनी लार्ज एक्सपेंशन के बाद मेरी ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन होती ही नहीं या लो होती बड़ी दिन, और उसमें भी ऐसे कर रहा है, कभी हाई रिजेक्ट, कभी लो, कभी हाई, कभी लो। तो उतनी खास एक्सपेक्टेशन बचती नहीं, बस यही चीज़ अच्छी है, 930 इमीडिएट जाता है लो ऑफ द डे, उससे इमीडिएट डिस्प्लेसमेंट, ओनली थिंग विच वुड हैव लुक्ड नाइस। ओके सर। सर नींद आ रही है आपको है? बस 13 अक्टूबर, बस भाई आपको नींद आ रही है तो सुबह कर लेंगे बाकी। मैं कह रहा हूँ नींद आपको आ रही है। 13 अक्टूबर को मैंने डाला था कुछ शुरू को। डाला तो होगा भाई, आप बैठते तो हो नहीं। नहीं, मैं डालता कम कम हूँ ना आजकल। ये आग तो नहीं आया यार, ओहो बच गए। 14 14 अक्टूबर। सर इस दिन ये पूरा दिन बुलिश गया था यहाँ से, फिर इधर से ही गया था। जी। और 14 अक्टूबर, हाँ, ये देखने के बाद मैं नेक्स्ट दिन बुलिश था। और आपका आइडिया भी राइट है कि यहाँ से बेरिश हुई और यहाँ से बुलिश हुई, टू गुड। आई एम न्यूट्रल बिकॉज प्राइस कैन टेक एंड मेक द वीकली लो। हाँ ठीक है, गैप अप कैन शो, परफेक्ट। डेली से मैं भी यही सोच रहा था। ओपन हाई, फ्रेमिंग बैक, हाँ ठीक है। तो वही, अब इसको कुछ करना है, अगर इसको ओपन लो से हाई जाना है तो यहीं से करना चाहिए। तो अगर ये यहाँ से नहीं कर रहा है तो दिस इज मोर ऑफ एन ओपन हाई डे, है ना, बेरिश दिन है, क्योंकि यही लास्ट लेवल ऑफ डिफेंस है।
और यही मैंने ES का भेजा था शायद, कि यहाँ पे देखना चाहता हूँ। ये डेली ओपनिंग होगी है ना, और ये वही लेवल कि 9:30 मैनिपुलेट करता है, 10 AM इमीडिएट इससे अवे भागता है, तो यस दिस इज बुलिश टू मी, और ये इससे यहीं से बुलिश गया था फिर पूरा पूरा। जी कौन सा मस्त दिन है? था भाई। 14 अक्टूबर। But if you treat ये याद है। पर प्रेफरेंस मेरी RTY थी, फिर इसने जाना है तो यहाँ से जाए फिर, जो कि ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। 9:30 रिवर्स करता है, 10 AM उसकी कॉन्टिन्यूशन, तो यस, बट प्रेफर्ड एसेट NQ नहीं ES मेरा था शायद। हाँ तो ES हायर द डे पहुंचता है उस उधर से ही। ये दोनों सेम तो थे, फिर एसेट सिलेक्शन का कैसे आ गया? दोनों सेम तो थे, वो NQ और ES। लाइव में देख के बता सकता हूँ कि मैंने बोला भी ES का ही सब बात वो है। अब वो जब बोल रहा हूँ उसी वक्त पूछ लो तब याद रहता है मेरे को। नहीं चलो ठीक है भाई। मे भी मैं NQ पे कुछ जल्दी और करो देखना रैप चाहता हूँ। करो भाई, आपका टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, कल वाला टाइम आ गया नहीं तो आपका तो। हाँ जी भाई, कर लेते हैं। डन। बस बस इसमें जल्दी जल्दी। कितना बचा है? ये वाला इसलिए पूरा मैं देखता इम्प्रूव कर हूँ। सकता हूँ, ये हो गया हमारा डिस्कस। अच्छा ये हो गया। Prices reached to relevant now. Now we'll see. Okay, yes, good. हैं, अब इसमें स्टिल वही है जस्ट भाई, टू हाई इन द ये रेंज, वेट कर नॉट लीजिए। नॉट न्यू इन फेज। मतलब टू मच एक्सपेंशन एंड टू हाई इन द रेंज, सो काइंड ऑफ वेटिंग सिनेरियो। फिर कोई एंट्री नहीं बननी थी ना भाई हमारी। बनती ना इसका क्लोजर पे। ठीक है कोई चक्कर नहीं है। रुको मैं कहीं पे रिएक्शन देखना चाहता था, यहाँ पे या फिर यहाँ पे। यहाँ पर हाँ जी। कि अगर आप इसको देखो जो एकदम फाड़ फाड़ के एक्सपेंशन एक्सपेंशन, अब मैं इस मूव को भी पूरा एक ही मानूंगा, पूरी न्यू फेज इतनी डिमांड करूंगा कि सच में न्यू फेज बने, फिर न्यू फेज खत्म भी हुई, ये इतने इतने को स्टिल सेम फेज में ही मानते हैं। ओके, फिर आपने इसके बाद में एंट्री ली होगी ना 11 अराउंड। नो आइडिया, मैं चला ही गया था शायद, मतलब मैं मंदिर गया था तो मैंने देखा ही नहीं था, तो वो ये अपडेट भी मेरे को मुंबई ने आके दिया था कि इधर से ही सारा गया है। कि अगर ये डाला है और उसके बाद ये वर्कआउट करा है पूरा आइडिया यहाँ तक ऊपर तक, तो उसका अपडेट भी डालने का टाइम नहीं मिला, मतलब रिप्लाई में, वो भी मुंबई ने आके डाला है। एंट्री नहीं होगी ना भाई इसमें, 5 मिनट पर एंट्री तो नहीं है इस पर कोई भी। ये देखने को बोलूँ ये मैं भी नहीं लेता शायद, ये वाली। पर ये मैंने ES पर ली होती तो मेरी वर्कआउट कर जाती शायद, NQ ने इसे स्वीप कर दिया है। हैं, वही एसेट सिलेक्शन हाँ। आपको बड़ी बार जाने अनजाने में बचा लेता है, पर ES पे भी नहीं लेता मैं ये, अगर मैं लेता, मतलब वो अब इनफ रेंज डिपेंड करता है आपकी करंट रेंज कैसी है, तो मैं तब इतनी छोटी को ट्रस्ट नहीं कर सकता, सब्जेक्टिव है ये चीज़। मैं अभी भी चाहता ये ऐसे आए फिर ऐसे, तब मैं ये पूरी लेग को ट्रस्ट कर सकता हूँ। अब पता नहीं इसके बाद भी मेरे लिए कोई एंट्री बनी होती है या नहीं, मोस्ट प्रोबेबली नहीं। शायद ये
कहाँ पे है? 12 PM नहीं लेता, 12 PM भी आ जाके। हो जाता। और अब YM नहीं, RTY मोस्ट प्रोबेबली कुछ भी नहीं होता मेरे लिए इसमें। ओके सर। ठीक है, फिर इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है जैसा, कहाँ पे पहुंचे हम हाँ उसको जी, हाँ मैं जी, हाँ देख जी। लो, इसको पूरा पढ़ लेता हूँ ना। तो बस वही है मेरे, ट्रैवलर। एसआईडी प्रेफर ESC, तो इसको कंप्लीट ही कर दूं। हाँ वैसे जी, देखते हैं ES क्यों थी, इसको कंप्लीट करके ही जाते हैं ना। ये 14 अक्टूबर, नीचे कितने बच्चे हैं? ये तो कल ही कर दूंगा 14 अक्टूबर। हाँ जी, हाँ जी। इसको अनरीड पे रखते हैं ना फिर। आपका ये भी पढ़ लिया मैंने, यहाँ तक भी हाई टाइम फ्रेम भी सही है, बस एसआईटी गलत है। एंट्री चाहे मैं ES पे वर्क करी पर वो भी नहीं लेता, पर बात यह है आपने NQ लिया तो हमें एक गलती और पता चल गई कि NQ लेना ही नहीं था। चाहे ES पे ये एंट्री आपकी जी, वर्क जी। कर जाती, सेम ES पे लेते, पर मैं ES पे भी नहीं लेता। पर स्टिल एसेट आप पहले ही गलत हो, वो चीज़ को देख सकते हैं हम लोगों। डिस्ट्रीब्यूटेड बिफोर 9:30, now I am waiting for what direction। ठीक है, I think डिस्प्लेसमेंट 10:30। why ES and why not NQ? हैं सेम ही दिख रहे हैं। बिना मजाक के सेम दिख रहे हैं सही है। नहीं, इसने पहले ले लिया है प्रीवियस डे ओपन, एक एसिड ने। क्या मतलब? ये गैप अप नहीं है जो, वो हम्म। गैप अप पहले, एक एसिड ने गैप अप पहले ले लिया है। मुझे ऐसे लगा। हाँ को यस। पर मैंने क्या सोच के सिर्फ ES डाला है, NQ क्यों नहीं, ये मेरे को भी थोड़ा समझ नहीं आ रही है। मौके पर आपको जब आ जाती है वो तब वो आएगी मौके, वो चीज। हाँ आधी चीजें होती है मौके वाली है ना। कि एक चीज जो मेरे को अभी यस। दिख रही है कि जस्ट क्लोजर्स देख के जो एक सिंपल स्ट्रेंथ लॉजिक, ES का क्लोजर्स देखो और NQ का देखो, NQ के ज्यादा बेरिश। पर मैंने खाली यही नहीं और भी देखा। देखती चीजें होंगी, पूरी हाँ एक वही, क्लोजर तो नहीं देखती आप, बहुत चीजें भी देखती हो। खाली यही नहीं देखा होगा, बात वही है। यस। दैट्स फाइन भाई, कोई चक्कर नहीं है। और मैं फिर अभी इसमें क्या चीजें और लिखा करूं जिससे आपको भी और मुझे भी और क्लैरिटी आए भाई। आगे और जर्नल लिखना है, मतलब बैक टेस्टिंग करनी है। भाई जी कि बैक टेस्टिंग आप उस सेंस में क्या करो पता है कि अभी तो आप ये लाइव वाला जर्नल कर रहे हो ना, एक बैक टेस्टिंग के लिए अलग बनाओ। हाँ उसमें जी। पता है क्या करना, कि जैसे अगर डेली पे चल गए, ठीक है, कोई दिन खोल लिया यहाँ पे, सपोज कोई भी खोल लिया, ओके। अब यहाँ पे पहले डेली चार्ट पे ही बायस बनाना है। जैसे मेरे लिए ओके रेंजिंग, ओके मेरी कहाँ पे पार्टिसिपेशन, ऐसे ऐसे XYZ, ठीक है। पहले यहाँ पे बायस बनाना। क्या मैं अगले दिन कुछ करूँगा यहाँ पे? करूँगा, कहाँ पे करूँगा, क्या देखूंगा? और ली जाना ही नहीं है, सिर्फ डेली पे रहना है, ठीक है। सिर्फ आपके पास एक ही चीज़ करनी है, आपका बायस सही हो गया या गलत, कुछ नहीं और, ठीक है। मेरे लिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस दिन मैं अपने आप को बोलूंगा क्या पता मैं लॉन्ग वापस बैक इन द रेंज, बैक इन टू द रेंज मार सकता था। वो जाके ढूंढना है बस, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे क्लियर दिख लिया कि ये हिट भी 1 PM पे हुआ, तो मैं ट्राई भी नहीं करता है ना, वापस डेली। अब पहले डेली पे, डेली का ही बायस, क्या यहाँ से मैं लॉन्ग मार सकता हूँ, बेरिश मार सकता हूँ? दो चीज़ें अपने आप को बोलूंगा। अगर बेरिश तो मैं प्रीवियस डे लो के नीचे डिस्प्लेसमेंट थ्रू देखना चाहूंगा, क्योंकि ये लास्ट लेवल होगा जहाँ से प्राइस अभी भी बुलिश जा सकता है ना। अगर ये भी फेल होता है तो मैं यहाँ तक फ्रेम कर सकता हूँ, नहीं तो बुलिश के लिए डायरेक्ट इससे अवे या प्रीवियस डे लो लेके। तो वो पहले बायस यस। डेली चार्ट पे देखूंगा, अच्छा मेरा सही हुआ है बायस, ओके। अब देखूंगा इस दिन मैं कैसे फ्रेम कर सकता था, इसमें जाऊंगा औरली, फिर सारे एसेट देखूंगा, फ्रेम फ्रेम करूंगा XYZ,
और क्या ऑब्जेक्टिव होता, क्यों ये होता, क्यों एसेट ये होता, कहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस मिल सकता था बायस सही होने के बावजूद। और किसी एक दिन अगर बायस थोड़ा गलत हो बहुत गया, होता है भाई कि भाई सही भी होगा आपका स्टॉप लॉस तो भी हो जाएगा, हाँ वही नहीं भी उसी को होएगा भी भाई। जानने की कोशिश की, क्या मेरा एसेट गलत था या वैलिड लॉस था, या मैंने जल्दी ले लिया मैंने बाद में ले ली। कि आपको वो नहीं मारना कि अच्छा अगले दिन का बायस मेरा पास बुलिश है तो अगले दिन को जाके और पे जाके फ्रेम करने लग जाओ। अगले दिन ऐसे ऐसे नहीं करना, अगले दिन मतलब डेली पे रहना है, ठीक है, रहना डेली पे ही है। डेली मेरे पास अगले दिन बायस है, ओके बुलिश क्यों, रेंज लो मैनिपुलेशन ये ऑब्जेक्टिव, उसको पहले प्ले करना है कि आप सही हो या गलत, पहले आंसर लेना है, अच्छा मैं सही हूँ मोस्ट प्रोबेबली, फिर मैं जाके देखूंगा क्या मैं इस दिन एंट्री ढूंढ पाया होता। ठीक है, अगले दिन मेरा ऑब्जेक्टिव अभी भी मीट नहीं हुआ, मैं अभी भी बुलिश, ठीक है, अगले दिन प्ले करो, देखना अच्छा मीट हो गया, अब मैं देखूंगा मेरा ऑब्जेक्टिव अभी था, फ्रेमवर्क था, मैं किस तरीके से फ्रेम कर पाता, उसको जाके स्टडी करना है। अब इस दिन फिर से बायस बनाओ, क्या मैं बुलिश मार सकते हैं, बेरिश, बुलिश मारूंगा तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर मैं डिस्प्लेसमेंट देखना चाहूंगा, बेरिश प्रीवियस डे हाई स्वीप, या बिना प्रीवियस डे हाई स्वीप के भी। अब मैं प्ले करूंगा, क्या मैं गलत होता सही, कुछ आइडिया नहीं मेरे को, इसको जाके ऐसे पढ़ूंगा, क्या मैं गलत होता कैसे ही ऐसे, अगले दिन का फिर से बायस सेम कि बनाऊं बेरिश बुलिश एक्सवाइजेड, फिर चेक करूंगा मैं सही हूं या गलत। अब इधर शायद मेरे को शॉर्ट मिल सकता था एक, इसको भी जाके स्टडी करूंगा मैं, और अगले दिन मेरे पास रेलिवेंट स्विंग्स यहाँ आगे, अगर मैंने शॉर्ट मारना है यहाँ तक नहीं मिला, देखूंगा क्या पता मैंने शॉर्ट मारते हुए यहाँ तक लॉस ले लिया होता तो कैसे अवॉइड कर सकता था वो, यहाँ क्या पता मैंने को अपने आप को कैसे बोल सकता था कि यहाँ तक मारना ही नहीं है, वो देखूंगा। फिर अगले दिन का बायस यहाँ तक आया, क्या मैं यहाँ से अवे फ्रेम कर सकता था या यहाँ तक फ्रेम कर सकता था, वो मतलब पहले डेली प्रिंट करवाना है, फिर जाके उसको पढ़ना है। ऑरली को नहीं ऐसे प्रिंट कराना है, ऐसे एक एक करके प्रिंट डेली कराना है, ठीक है, ऑरली को प्रिंट ओके नहीं सर। कराना, ऑरली को सिर्फ पढ़ने जाना है। और ये रेलेवेंट स्विंग ठीक ऑरली है के सर। कितने मस्त दिख रहे हैं, बोलो नहीं दिख रहे हैं ना मस्त, देख रहे हैं भाई। क्या ही मस्त है भाई वाकई। की प्राइस नॉट रिवर्सिंग ऑफ ऑफ एयर, expansion to new phase consolidation, range low manipulation, forward expansion। बैक टेस्टिंग का सही तरीका ही यही है कि डेली चार्ट पे बायस उस पे तुक्का मारो डेली पे जितना, अच्छा अभी भी अगले दिन बुलिश तो मैं देखूंगा प्रीवियस डे आए फिर कैसा रिएक्शन, लो टाइम फिर मैं देखूंगा, अच्छा अब कुछ भी उसका पहले डेली चार्ट पे देखो सही होते गलत, एक एक दिन करके प्ले, और हर दिन फिर स्टडी करना है कि कैसे मैं अवॉइड कर पाता या कैसे अगर ये मैं एसएल ले लेता, कैसे क्या ये टीपी कैसे ले लेता, कैसे मैं अपने आप को बोलता मैंने आज फ्रेम ही नहीं करना है, या मैं गलत डायरेक्शन देख रहा था, मैं कैसे सही अपने आप को बता सकता था। पर वो डेली को ऐसे एक बार प्रिंट कराने के बाद, और कब मैंने अपने आप को बोलना है कि मैंने कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पे मेरे लिए प्रीवियस डे लो एक लेवल ऑफ रेलेवेंस है, इसको टच किए बिना मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली, प्रीवियस डे लो के नीचे डिस्प्लेस करता तो मैं शॉर्ट्स हो सकता हूँ, बायस गलत हो सकता है सही कुछ भी, स्टडी बाद में करना है। अब यहाँ तक शॉट क्या मैं मार पाता वो देखूंगा मैं, क्या यहाँ से अवे लॉन्ग में मार पाता वो भी देखूंगा मैं। अब ये मेरे को मोस्ट प्रोबेबली यहाँ की मैनिपुलेशन तो मेरा बायस यहाँ सही गलत वो यहीं से चेक करके जाना, अच्छा सही हुआ, क्या मैं फ्रेम कर पाता तो कैसे कर पाता, या एसएल लेता तो एसएल अवॉइड भी कैसे कर पाता, थोड़ा आइडिया लगे कैसे करनी है बैक टेस्टिंग। हाँ जी सर, आज यही करेंगे टेस्टिंग। मतलब यूडी बाई की ग्रोथ अब आपको समझ आई कैसी हुई। ओके सर। यूडी बाई के मेंबर चार्ट्स में देखना कितने डाले होंगे सर ने, बहुत ज्यादा, वो तो यार बहुत डिटेल डालते हैं। वही डिटेल फिर उनको मदद भी करता है ना, ये मार्क अनरेट करना है, ठीक है। तो इसका रीजन अभी तक नहीं पढ़ मेरे को समझ आया कि ईएस क्यों, देखेंगे बाद। जस्ट एक सिंपल स्ट्रेंथ ईएस में दिख रही थी तो इसलिए शायद ईएस, मतलब इतना वो शायद आंखों ने पहचान लिया मौके पे,
नहीं, एग्जैक्ट आंसर नहीं याद है। ठीक है फिर चलता हूँ जज भाई। दैट्स फाइन भाई। ओके भाई, रिकॉर्डिंग राधे मेरी राधे। ऑन है, हाँ ऑन है, और ये 1 घंटा 15 मिनट की है, डाउट्स भी हैं और आपका रिकैप भी। ठीक है भाई, राधे राधे सबको। रिकॉर्डिंग